everyone, this is Sutapa and you are watching the Mindful Learning Academy. Today we are going to do class 12, poem number 6, Aunt Jennifer's Tigers from the book Flamingo. So if you are new to the channel, consider subscribing, and now let's start with today's poem. So we are going to do Aunt Jennifer's Tigers, and this poem has been written by the poetess Adrienne Cicely Rich. Now, before doing the line-to-line explanation, let's understand the poet and her psychology, how and why she has written this poem. Now, Adrienne Rich is a very famous essayist and feminist, a big feminist. She has written number of essays, number of writings on feminism, on women rights, and this particular poem is a reflection of her character, of her social environment of that era that she belonged. The poem has been written in the year 1951, and at that time, the social environment was predominantly male-oriented. So we get to see the reflection of a male patriarchal society, the male dominancy, domestic violence, and a toxic marriage in this particular poem. The poem has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under the dominance of her husband and therefore a male-dominated society. So let's start with today's poem. The summary, and the summary goes like this: that Aunt Jennifer is a victim of a male-dominated society. She has no one to tell her pains, neither the physical nor the mental one, and she tries to express her feelings through an embroidery, an art form, and there in that embroidery, she is drawing few tigers. Those tigers are running tigers, and there is a comparison between the tigers which are moving and the lady. The tiger, who is supposed to be a native of forest, so he is very dominant character, very ferocious, having all sort of freedom, whereas our protagonist, Aunt Jennifer, she is mild, she is timid, she is under bondage of her husband and doesn't have so much of freedom. So we get to see this comparison and we'll understand more from the poem. तो शुरुआत करते हैं हमारी poem, and इसकी first stanza है: Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Let's look at some difficult words and then I'm going to do the line-to-line explanation. पहला word जो हमें दिख रहा है वो है prance. And what does the word prance means? Prance means moving or walking in a springy manner. That means बड़े बड़े steps के साथ move करना. So it is walk or move with big steps. The next word we have is topaz. Topaz we know is a gem which is yellow in color. So obviously if it's a gem, it is very precious. We have another word, denizens, and denizens का मतलब होता है native. Native मतलब यहाँ पे native का meaning है forest. So denizens means, over here it means. Then we have another word called sleek. Sleek means elegant. इसकी एक अलग ही अबोहाया है, so वो है sleek. And we have the next word
chivalric. Chivalric means a goodness where women are respected. It's a quality, okay? A good manner. Chivalric means respect to women. Now let's see the line to line explanation of this stanza. Aunt Jennifer's tigers prance across the screen. अभी आप यहाँ पे देखिए टाइगर्स जो है किसके हैं? आंट जेनिफर. तो आंट जेनिफर शी इज अ लेडी हु इज नॉट फ्री, लेकिन वो यहाँ पे कह रही हैं कि वो ओन करती है इन टाइगर्स को. ये टाइगर्स एक्चुअल टाइगर्स नहीं है, ये टाइगर्स वो टाइगर्स हैं जो एम्ब्रॉयडरी में वो बना रही हैं. एंड आंट जेनिफर इज ट्राइंग टू शो द ओनरशिप, मतलब एक सॉर्ट ऑफ पावर. तो शी इज सेइंग दैट हर टाइगर्स prance across the screen. और स्क्रीन क्या है यहाँ पे? स्क्रीन है उनका पीस ऑफ क्लॉथ. जो क्लॉथ का पीस है वो है स्क्रीन. तो आंट जेनिफर के टाइगर्स मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एंड इन बिग स्टेप्स, they in springy steps they are moving in that piece of cloth. Bright topaz, denizens of world of. और ये टाइगर्स कैसे हैं? किसके साथ कंपेयर किए गए हैं? दे आर ब्राइट लाइक टोपैज. टोपैज इज द जेम, एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन जो येलो कलर का होता है. यहाँ पे टाइगर्स को उसके साथ कंपेयर किया गया है. और ये टाइगर्स कहाँ रह रहे हैं? डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. उनका रहने का स्थान, उनका नेटिव प्लेस है a green world. So the green world is actually the forest. Okay? They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. और ये टाइगर्स कैसे हैं? ये टाइगर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इंसानों से नहीं डरते. उनमें बहुत ही हीरोइज्म है, वो बहुत फेरोशियस है, वो बहुत ब्रेव है, और वो किसी भी इंसान से नहीं डरते हैं. मैन यहाँ पे एक्चुअली मेल डोमिनेंसी को कहा गया है. दे पेस इन स्लीक. पेस मींस मूवमेंट, और उनकी मूवमेंट अप एंड डाउन मूवमेंट, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं. ये मूवमेंट कैसी है? बहुत ही एलिगेंट है, बिल्कुल एक एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल में है. तो इट्स एलिगेंट, एंड वो मूवमेंट देख के यूं लग रहा है जैसे उनके अंदर बहुत सारे गुड मैनर्स हैं. गुड मैनर्स लाइक रिस्पेक्टिंग वुमेन. तो बिल्कुल उनकी बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन एक टाइगर का दिखाया गया है. तो ये सारे बेसिकली दिखा रहे हैं टाइगर यहाँ पे इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेल, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेल को ऐसा होना चाहिए. ठीक है? तो ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा लेट्स लुक. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. Second stanza is absolutely a female-oriented stanza. यहाँ पे आंट जेनिफर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. आंट जेनिफर के फिंगर्स फ्लटरिंग. फ्लटरिंग कौन करता है? फ्लटरिंग करती है बटरफ्लाई, जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, चिड़िया जो अपने विंग्स को फ्लटर करती है. तो आंट जेनिफर के हैंड मूवमेंट्स बिल्कुल फ्लटर कर रहे हैं. कहाँ पे? उस नीडल में, उस धागे को खींचते हुए वो फ्लटर कर रहे हैं. लेकिन आंट जेनिफर की वो नीडल को खींचने का मूवमेंट कैसा है? बहुत ही डिफिकल्ट फील कर रही हैं आंट जेनिफर. फाइंड इवन द आइवरी नीडल. आइवरी ओवर हियर मींस जो नीडल एलिफेंट टस्क के, आइवरी प्रेजेंट होता है एलिफेंट के टस्क में. तो नीडल जो एलिफेंट टस्क के मेटल से बनी हुई है,
और वो नीडल बहुत ही मुश्किल से पुल हो रहे हैं आंट जेनिफर के हैंड्स। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है वीकनेस इन आंट जेनिफर्स कैरेक्टर। उनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक नीडल जैसा छोटा चीज भी अच्छे से पुल कर पाए। द मैसिव वेट, और उनके पास वीकनेस, उनका ये वीकनेस क्यों है? क्योंकि वो दबी हुई हैं। उनके ऊपर एक मैसिव वेट है। मैसिव मींस ह्यूज। किस चीज का ह्यूज वेट है उनके ऊपर? Weight of uncle's wedding band. Band over here means हाथ का जो रिंग है, फिंगर्स की रिंग है, उसको कहा गया है। ये रिंग कब पहनाया गया था? ये रिंग पहनाया गया था शादी के टाइम पे अंकल के द्वारा, और वो रिंग के साथ उनकी जिंदगी में आया है एक चेंज। फ्रीडम उनका कर्टेल हो गया है, कर्ब हो गया है, एंड अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझे के अंदर दबी हुई। तो शी सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स। और ये रिंग कहाँ है? ये रिंग बैठी हुई है आंट जेनिफर के हैंड। I hope the second stanza is clear to you. And now let's move to the next stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still wrenched with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made, she will go on prancing, proud and afraid. Let's look into the difficult words first. और सबसे पहला वर्ड है ordeals. Ordeals मतलब hardships, बहुत ही जिंदगी में मुश्किलों भरा जो मोमेंट होता है वो है हार्डशिप्स, कठिनाइयां। एक और वर्ड हमको दिख रहा है मास्टर्ड। मास्टर्ड मींस जब हमारा कोई हम पे ऊपर से कोई कमांड कर, ठीक है? सो डोमिनेटेड, वी कैन से डोमिनेटेड। एंड एक थर्ड वर्ड है प्रांसिंग। प्रांसिंग मतलब मूव करना। मूव करना, प्रांसिंग इज अगेन अ मूवमेंट। एंड ये मूवमेंट टाइगर का दिखाया गया है, बहुत ही प्राउड मूवमेंट और बिल्कुल फियरलेस मूव। अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन आंट जेनिफर इज डेड, और अब एक सिचुएशन दिया गया है जहां पे आंट जेनिफर अब अलाइव नहीं है, ही इज डेड। तो डेथ के साथ क्या आता है? पीस। लेकिन क्या आंट जेनिफर को पीस मिला? लेट्स सी। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, लेकिन अभी भी उनकी हाथ टेरिफाइड है, डरी हुई है, कपकपा रही है। तो उनको पीस अभी भी डेथ के बाद नहीं है। स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियंस, और अभी भी क्या है? उनके हार्डशिप्स हैं। क्यों है? बिकॉज शी वॉज मास्टर्ड बाय, क्योंकि उन पे एक कोई है जो डोमिनेट कर रहा था, वो डोमिनेटेड थी। तो मास्टर्ड बाय हर हस्बैंड। यहाँ पे एक और चीज का हमको ध्यान रखना है। नॉर्मली टाइगर्स को भी मास्टर किया जाता है। पहले सर्कस चलता था और सर्कस में आपने सुना है मास्टर्स टाइगर्स को कोशिश करते थे ट्रेन करने का, और उनके हिसाब से वो स्टैंड करते थे, मूव करते थे, सिट करते थे। टाइगर्स को भी मास्टर किया जाता है। द टाइगर कहने का मतलब है कि आंट जेनिफर भी बिल्कुल अपने हस्बैंड के द्वारा मास्टर्ड की गई थी, और वो जैसा कहते थे आंट जेनिफर वैसे ही जिंदगी जीना। टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन उनके जो टाइगर्स हैं जो पैनल में है, जो पीस ऑफ क्लॉथ में है, वो कैसे हैं? दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग। उनके टाइगर्स मूव कर सकते, और वो मूवमेंट कैसा है? proud and unafraid. So you have the new word meanings given at the down, and आप चाहे तो इनको रेफर कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है। और अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के पोएटिक डिवाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है पोएटिक डिवाइसेस। सो लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस। एंड पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहला पोएटिक डिवाइस we have is
Green, green tree certainty. Green, green tree certainty is basically, let me just clear this so that आपको ये अच्छे समझ में आ जाए. Now you can see screen, green, tree, certainty. इनमें rhyming है. So our rhyming will go in couplet A, B, B. Then you have pull, pull. फिर ये जाएगा C, band, hand, D. तो ऐसे ही इसका rhyming scheme, rhyming pattern है, हमें दिख रहा है. This is the first poetic device. इसके बाद हमारा आता है right to pass. Right to pass, which is a comparison. यहाँ पे टाइगर को कंपेयर किया गया है विद अ प्रेशियस स्टोन टू पास, लेकिन ये कंपैरिजन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है. इट्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन, हेंस दिस इज मेटाफर. So our second poetic device is metaphor. Okay, अब हम देख लेते हैं एक और. अब है टाइगर. ये टाइगर क्या है? टाइगर है, टाइगर को कहा गया है कि उसकी मूवमेंट sleek and chivalric certainty, with certainty. तो sleek मूवमेंट किसका होता है? एलिगेंट मूवमेंट ह्यूमन बींग्स का होता है. chivalric means somebody who has good manners, और good manners किस में होते हैं? ह्यूमन बींग्स में होते हैं. लेकिन हम यहाँ पे ये क्वालिटीज एक टाइगर को दे रहे हैं. हमारी पोएट एक ये क्वालिटीज एक टाइगर को दे रही है. दैट मीन्स दिस इज personification. Okay, so next one is personification. Now personification means giving human qualities to animals or non-living object. तो यहाँ पे टाइगर को ह्यूमन क्वालिटीज दिया गया है. Next, we can see we have certain chivalric ka C and certainty ka C. So this is two words starting with a consonant sound in the same line. So this is called as alliteration. So next is alliteration. So this is our next poetic alliteration. अब हमारा नेक्स्ट स्टैंजा में हम देख ले, यहाँ पे कहा गया है मैसिव वेट. तो क्या एक रिंग का वेट मैसिव होता है, बहुत ह्यूज होता है? नहीं. रिंग का वेट तो लाइट होता है, लेकिन यहाँ पे मैसिव कहा गया है, मतलब ओवर एग्जैजुरेशन किया गया है. तो दिस इज हाइपरबोल. दिस इज हाइपरबोल. Okay, that means over exaggeration of a concept. तो hyperbole हमें दिखता है. और हमारा next important जो poetic device है, when you read this line, bright topaz denizens of the world of green. जब हम पढ़ते हैं world of green, क्या आपको एक ग्रीन इमेजिनरी सिचुएशन नहीं याद आता है, जहां पे आप ग्रीन कलर को बिल्कुल इमेजिनरी तरीके से सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? तो दैट इज स्किल that our poetic that our poet has used in the poem, and this sort of writing skill is called as imagery. Our next poetic device is, we have it in the third stanza, that is terrified hands. Terrified hands में हमारा transferred epithet किया गया है. So transferred epithet means when a quality of one noun is not actually given to that noun, but it is transferred to some other noun. तो यहाँ पे terrified hands, the quality of a person is transferred to the object. यहाँ पे hand मतलब hand को नहीं कहा जा रहा है, ह्यूमन के हैंड को नहीं कहा जा रहा है. यहाँ पे हैंड मतलब आंट, जो एक वीक पोर्ट्रेयल है
उसको कहा जा रहा है। टेरिफाइड हैंड मीन्स एक लाइफ जो ऑलरेडी सब्जुकेटेड है, जो ऑलरेडी एक हार्श मैरिज में है, जो एक हार्श बिहेवियर को देख रही है, जो एक डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है, उस लाइफ को कहा गया है। तो इट इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट. And finally, we have our last poetic device, which is called as irony. So irony is there in this poem, and वो irony हमें कहाँ दिख रहा है? वो irony हमें दिख रहा है with tiger, with the word tigers. Tigers की कैसी personality होती है? तो tigers की personality basically very it's supposed to be very ferocious, जो किसी से नहीं डरता है, जो बिल्कुल एक्टिव होता है, हंटिंग कर सकता है, और जिनकी एक अलग अपनी ही ग्रेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइगर लिव्स इन प्रिजन। यहाँ पे मजे की बात यह है कि वो टाइगर जो फ्रीडम में रहता है, जंगलों में रहता है, मगर इस पोम में वो टाइगर एक प्रिजन में रहता है। और वो प्रिजन कौन सा है? वो प्रिजन है आंट जेनिफर की वो एम्ब्रॉयडरी, वो पैनल जो उन्होंने बनाई है पीस ऑफ क्लॉथ पे, वो टाइगर उसी के अंदर सिमटे रहता है। जस्ट द वे एक टाइगर हम देखते हैं जू में, जो एक रूम में एक पर्टिकुलर एरिया में सिमटे रहता है, उसकी मूवमेंट उसी एरिया में रह सकती है, उसी पर्टिकुलर सेल में हो सकती है, वहीं पे उसको सारा अपना ब्रेवरी दिखाना होता है। सिमिलरली ये टाइगर जिसको फ्रीडम है मूवमेंट का, जिसको फ्रीडम है जंपिंग का, जिसको फ्रीडम है कि वो यहाँ वहां अप एंड डाउन मूवमेंट कर सके, लेकिन कहाँ पे? उस पैनल के अंदर, उस खाली स्पेस के अंदर, खाली स्पेस के अंदर। तो ये आयरनी है। एक और आयरनी है, वो है आंट। आंट जो डेड है, जो डेड हो जाती हैं, जिनको मरने के उपरांत भी पीस नहीं मिलता है, तभी भी उनकी जिंदगी डरावनी बनी हुई है, डोमिनेटेड है उनके हस्बैंड के द्वारा, क्योंकि बाकी की पहले की जिंदगी बिल्कुल डोमिनेटेड था, एक बहुत ही टॉक्सिक मैरिज था, डोमेस्टिक वायलेंस था। तो उनको अभी भी उनको रिहाई नहीं मिला है, फ्रीडम नहीं मिली है। एंड वी हैव अनदर irony of uncle. Uncle का portrayal is a male character, and that male character should be somebody like the tiger, जो फर्स्ट पैराग्राफ में जिस टाइगर को डिस्क्राइब किया गया है, उसके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए जिसमें फियरलेस होना चाहिए, फेरोसिटी होना चाहिए, लेकिन साथ में वुमन के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन हमारा कैरेक्टर में अंकल doesn't show any respect to women, rather he is dominating. Their marriage is not a very good marriage, and Aunt Jennifer is a victim of domestic violence. तो ये है आयरनी। मुझे लगता है कि आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट पे लिख के पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अब आप बिल्कुल, अगर आप मेरा ये लेसन, मेरा ये पोम आपको अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट फ्यू वीडियोस आपको तुरंत से मिल जाए, जो जब भी मैं अपलोड करूं। थैंक यू एवरीवन।